हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल इंग्लिश जॉय में। आज का ये चैप्टर है डेंटल हेल्थ, दांतों का स्वास्थ्य। इस पर आपको पता ही है कि दांत कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट। दांतों का हाइजीन, साफ सफाई कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज इस वाली स्टोरी के अंदर एक सोनिया नाम की जो लड़की है, वो अपने दांतों को प्रॉपर केयर नहीं कर पाती, हो कितनी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में है। एक्सट्रैक्ट रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर ऊपर से ढूंढ के हमें लिखना है। हाउ डिड सोनिया सफर बिकॉज ऑफ अ टूथेक? सोनिया कुड नाइदर ईट नॉर गो टू स्कूल. स्टडिंग एट होम वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल ड्यू टू पेन. शी कुड नॉट स्लीप. ना खा पी सकती थी, ना स्कूल जा सकती थी, घर पे पढ़ाई भी इम्पॉसिबल थी। What did Sonia's uncle say? Sonia's uncle said that they must visit a dentist. Dentist की मुलाकात लेंगे. So where did Sonia go in the evening? Evening में सोनिया कहाँ पर गई? Sonia went to dental care clinic of Dr. Sharma. What kind of a doctor was Mr. Dr. Sharma? Dr. Sharma was a young and competent doctor. Which instrument did the doctor use to check Sonia's teeth? The doctor used a mouth mirror and the probe to check Sonia's teeth. What did the doctor see? The doctor saw a cavity in Sonia's premolar. Why did the doctor give medicine to Sonia? The doctor gave medicine to Sonia because Sonia had toothache. Then only the further treatment was possible. Why could Sonia come alone? Sonia came alone because she was a brave girl. What treatment did the doctor give Sonia? Doctor cleaned the cavity. Then she filled it with a white substance known as light cured composite filling material. Why could the doctor spare time to talk to Sonia? The doctor could spare time to talk to Sonia because she was the last patient that day. What did Sonia love eating? Sonia loved eating chocolates and ice creams as well as other sweets. How many times did Sonia brush her teeth? Sonia brushed her teeth only in the morning. How many times should we brush our teeth? We should brush our teeth properly twice a day, once in the morning and once before going to bed. What is the right way of brushing teeth? The right way is to move the brush upward and downward so that it removes the tiny bits of food stuck between the teeth, and also brush the gum lines with gentle strokes. How should the gum line be brushed? The gum line should be brushed with gentle strokes. How often should you clean your mouth? We should clean our mouth after every meal and every time we eat a chocolate or ice cream. What is the first requirement of dental hygiene? Cleaning of mouth is the first requirement of dental hygiene. What do the germs feed on? The germs feed on tiny bits of food inside stick to the surface of our teeth and in the space between teeth. What do the germs do? The germs destroy the enamel coating of the teeth and this leads to cavity. What is enamel? The uppermost white layer of the teeth is called enamel. What is dentin? The second layer of the teeth, which is slightly yellowish, is called dentin. What is dental pulp? The innermost layer of the teeth is called dental pulp. Which is the hardest and strongest part of our body? The enamel is the hardest and the strongest part of our body. Name the two types of teeth.
The two types of teeth are first deciduous or milk teeth and permanent teeth. What is molar? Molar is a kind of teeth. What do you know about deciduous teeth? Deciduous teeth are usually 20 in number and they shed by one after growth. How many permanent teeth do we usually have? We usually have 32 permanent teeth. How many incisors and canine are there in each jaw? There are four canines and four incisors and two canines in each jaw. How many premolars and molars are there in each jaw? There are four premolars and four or six molars in each jaw. How did Pooja break her teeth? Pooja slipped up the staircase and broke her teeth. Whom should Pooja consult? Pooja should consult a dentist. What will the dentist suggest to Pooja? The dentist will suggest restoration of teeth with light cure composite filling material. Why does Dhara feel embarrassed? Dhara feels embarrassed because she has an uneven growth of teeth. What is the solution of uneven growth of teeth? Uneven growth of teeth can be corrected by orthodontic treatment, in which braces are fixed on teeth to bring them in proper alignment. What is crowding? Uneven growth of teeth is called crowding. Which project does Sonia want to take up? Sonia wants to take up a project on dental health. Use the set of words in your own sentence. दो या तीन वर्ड जो दिए हैं उनका यूज़ करके हमें अपने खुद के सेंटेंस बनाने हैं. Impossible, destroy. Ravana realized that it is impossible to destroy Vanar Sena. Competent, valuable. Dr. Shah is a competent doctor. His suggestions are valuable. Reason, consult. Do you know the reason why Meena is consulting a doctor? Requirement, hygiene. Hygiene is the most requirement for good health. Possible, restoration. Restoration of teeth is possible for Radha. Eventually, examine. Eventually, our teacher examined our notebooks. Exist wide. There exists wide gap between poor and rich. Solution, permanent. There is no permanent solution for pollution or traffic in cities. Regularly, in long term. If you study regularly, it will pay you in the long run. Suggest, fond of. Lata is fond of opera classes, but I suggest her ABC classes. Write who said to whom the following sentences. नीचे के सेंटेंस कौन किससे कह रहा है. We must visit a dentist. ये सेंटेंस अशोक भाई said to Sonia. Hello young lady, what's the matter with you? Dr. Sharma said to Sonia. I am prescribing some medicines today. Dr. Sharma said to Ashok bhai. I brush my teeth only in the morning. Sonia said to Dr. Sharma. You must brush your teeth properly twice a day. Once in the morning and once before you go to bed. Dr. Sharma said to Sonia. Enamel coatings? What's that? Sonia said to Dr. Sharma. No one should feel embarrassed about physical deformity.
Dr. Sharma said to Sonia. Well, Sonia can come alone. She is a brave girl, Dr. Sharma said to Ashok Bhai. Fill in the blanks choosing the correct words from the brackets. ब्रैकेट्स में दिया है पेन, सीवियर, इम्पॉसिबल. पेन यानी दर्द, सीवियर सख्त, अत्यंत, और इम्पॉसिबल यानी असंभव. सोनिया हैड अ सीवियर toothache. She could neither eat anything nor could she go to school. Studying at home was also impossible due to pain. Second, subside, prescribing, treatment. I am subscribing some medicines today. The pain will subside. I am prescribing some medicines today. The pain will subside by tomorrow. Then only the further treatment is possible. Number 3, surface, eventually, requirement. Cleaning of mouth is the first requirement of dental hygiene. If you don't clean your mouth, tiny bits of food inside stick to the surface of your teeth and in the space between your teeth. Now germs feed on these food particles that eventually eat up parts of the teeth too. Fourth, suggest, consult, examining. Well, she needs to consult a dentist. After examining her teeth, the dentist will suggest restoration of teeth with light cure composite filling materials. Number 5th, embarrassed, solution, problem. No one should feel embarrassed about physical deformity. This problem is called crowding. Now there is solution for the problem also. Correct the underlined parts and rewrite the paragraph. आपको ये पैराग्राफ फिर से लिखना है. जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो रॉन्ग है, गलत है, उसको करेक्ट करना उसमें. ऑल ऑफ अस में फॉलो द ट्रैफिक रूल. जब भी कभी रूल्स रेगुलेशन की बात आए, कोई भी नियम की बात आती है या कोई चीज़ कंपलसरी कुछ करने वाली बात आती है तो हमेशा मस्ट आता है. क्या आएगा वहाँ पे? हमेशा मस्ट लिखना है आपको. ऑल ऑफ अस मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल. क्या आएगा यहाँ पे? मस्ट. देन यू कैन बी अवेयर ऑफ ऑल ट्रैफिक रूल्स. तुम्हें सभी ट्रैफिक रूल्स के बारे में सावधानी रखनी होगी. तो जब सावधानी रखने की बात होगी तो रख सकते हो. तुम रख सकते हो, ऐसी बात नहीं आती, सकने वाली बात नहीं है, तुम्हें रखना ही होगा. तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल ट्रैफिक रूल्स. तुम्हें सभी ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना ही चाहिए. कंपलसरी बात है, नहीं कह सकते ये मुझे रूल पता नहीं था. क्या आएगा यहाँ पे? मस्ट. तो यहाँ पे कैन की जगह वापस क्या आएगा? मस्ट. यू आर नॉट, अगर तुम्हें अवेयरनेस नहीं है उस रूल्स के बारे में, यू शुड गेट इन टू ट्रबल. तो तुम्हें क्या, तुम परेशानी में आ जाओ, तो शुड नहीं आएगा. यू मस्ट, पक्का तुम परेशानी में आओगे. तो ये कंपलसरी की बात है, तो यू मस्ट, इसमें भी क्या आएगा? मस्ट. यू मस्ट गेट इन टू ट्रबल्स. इफ यू आर नॉट, यू मस्ट गेट इन टू ट्रबल. प्रॉमिस मी, मुझे प्रॉमिस करो दैट कि यू विल ड्राइव केयरफुल. यू विल ड्राइव, यहाँ पे ड्राइव की जगह यहाँ पे क्या है? यू ड्रॉ केयरफुली. तुम बहुत ध्यान से उसको ड्रॉ करोगे. यहाँ पे ड्राइव का भूतकाल दिया, ड्रॉ करना. तो प्रॉमिस करो कि तुम बहुत अच्छा ड्राइव किया, ऐसा नहीं आएगा. क्या कहेंगे कि मैं अच्छे से ड्राइव करूँगा. तो यहाँ पे ड्रॉ के नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? विल ड्राइव. आई विल ड्राइव लिखना आएगा. यहाँ पे ड्रॉ की जगह क्या लिखिए? आई विल ड्राइव. ओके. नेक्स्ट, किरण इज़ अ हेल्थ बॉय. किरण इज़ अ हेल्थ बॉय. हेल्थ बॉय नहीं, किरण इज़ अ हेल्दी बॉय. तो यहाँ पे लगाएंगे ये हेल्थ में की स्पेलिंग में लास्ट में वाई लगा देंगे. हेल्दी बॉय. किरण इज़ अ हेल्दी बॉय, उसका एडजेक्टिव है. ही एक्सरसाइजेस रेगुलर.
हु एक्सरसाइज रेगुलर नहीं है, ही एक्सरसाइजेज रेगुलरली, एल वाई लगाएंगे, रेगुलरली, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है। वी ऑफन टेक, ऑफन टेकन नहीं है यहाँ, वी ऑफन टेक हिज एडवाइस, हम कई बार उसकी एडवाइस लेते हैं। वी ऑफन टेक हिज एडवाइस ऑन हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करें उस पर उसकी ऑफन हम उसकी एडवाइस लेते हैं। किरण इज़ अवर रोल मॉडल, ये वाला जो रोल लिखा है ना, ROLL, ये स्कूल के अंदर जो रोल नंबर होते हैं 1 2 3, वो वाला रोल नंबर है। यहाँ पे रोल मॉडल की बात हुई तो उसकी स्पेलिंग क्या आएगी, ROLE, रोल मॉडल, किसी का रोल मॉडल होनी, किसी का प्रेरणा होना, राइट, कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं वगैरह। नेक्स्ट, थर्ड, मोहन वॉज ग्रेज हिज हर्ड ऑफ काउस इन द फील्ड। मोहन वॉज ग्रेज नहीं आएगा, मोहन वॉज ग्रेजिंग, क्या आएगा, ग्रेज की जगह क्या लिखेंगे, मोहन वॉज ग्रेजिंग, मोहन चरा रहा था, क्या चरा रहा था, हिज हर्ड ऑफ काउस, ये हर्ड की स्पेलिंग क्या है, HERD, हर्ड यानी झुंड, हर्ड ऑफ काउस, उसकी गायों के झुंड को चढ़ा रहा था, कहाँ पे चढ़ा था, इन द फील्ड, फील्ड के अंदर चढ़ा था। व्हेन ही सो ए ग्रुप ऑफ बॉयज, उस समय उसने लड़कों के एक ग्रुप को देखा, क्या करते हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्विम का क्या आएगा, स्विमिंग करते हुए देखा, क्या करते हुए देखा, स्विमिंग इन द रिवर, नदी में नहाते हुए देखा। मोहन सेट, ये वाला सेट नहीं है, मोहन सेट अंडर ए ट्री, तो इसमें सेट आएगा SAT, सेट, बैठा, मोहन कहाँ, मोहन बैठा, कहाँ पे बैठा, अंडर ए ट्री, एंड वॉच द बॉयज़, और बच्चों को देखता रहा, वो बैठा, पेड़ के नीचे बैठा और बच्चों को देखता रहा। तो यहाँ पे ये वाला सेट नहीं, सेट हमें लिखेंगे सी का, सिट का पास्ट टेंस, सेट, SAT। फोर्थ वन, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयरिंग ऑफ योर टूथ, केयरिंग नहीं, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ, क्या लिखेंगे, प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। क्या लिखने हैं यहाँ पे, प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ, यहाँ पे लिखेंगे केयर, प्रॉपर टेक केयर ऑफ योर टीथ। डू यू क्लीन, यहाँ पे डू है, जब भी यहाँ पे इस तरह से डू आता है तो क्रिया का पहला रूप आएगा, क्लीन आएगा। डू यू क्लीन, हमेशा डू डज डिड दिया है तो यहाँ पे क्लीन आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, डू डज डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आना है। तो डू यू क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद, मील यानी खाना, हर खाने के बाद तुम अपना माउथ क्लीन करते हो। यू कुड ब्रश योर टीथ, नहीं, यू कुड नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे यू शुड, शुड यानी चाहिए, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार तुम्हें ब्रश करना चाहिए। अब यहाँ पे वंस, वंस, ये वंस नहीं आएगा, वहाँ पे आएगी स्पेलिंग आएगी ONC, वंस, वंस का मतलब एक बार, वंस इन द मॉर्निंग एंड बिफोर यू गो टू बेड, और दूसरा आप सोने जाओ उससे पहले। यहाँ पर क्लियर ये हो गया। देन ये है कंप्लीट द डायलॉग यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन इन द ब्रेक, ब्रेकेट के अंदर जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनका यूज़ करके आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ, फर्स्ट इसमें दिया हुआ, व्हेन फर्स्ट रोहन सेज डिड राघव कैच द बॉल, राघव ने बॉल कैच किया, तो राज जवाब दे रहा है, ये पास्ट टेंस पूछा है, डिड दिया है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया, अभी मैंने बताया था उसी तरह से, डिड राघव कैच द बॉल, राघव ने बॉल कैच किया। तब यहाँ पर पहला क्या दिया, व्हेन डू योर एग्जाम्स बिगिन, तुम्हारे एग्जाम कब शुरू हो रही, कैन आई स्पीक टू नीता, से बात कर सकता हूँ, नो ही डिडन, देखो राघव के लिए क्या यूज़ होगा, नो, तो इसमें आंसर क्या ले, नो ही डिडन, नहीं उसने नहीं किया। यस आई डिड, नहीं, जब उसने पूछा है कि राघव ने बॉल कैच किया तो ऐसा नहीं बोले हाँ मैंने किया, क्या बोले, नहीं उसने नहीं किया, या हाँ उसने किया, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ नो ही डिडंट, तो ये आंसर लिखेंगे यहाँ पर। देन किरण सेज डिड यू सी पूजा, पूजा को देखा, तो नीलम क्या जवाब दे रही, तो यहाँ पे ये वाला तो आंसर इसमें आ गया। फिर व्हाट डिड द टीचर टीच, टीचर ने क्या पढ़ा, नहीं। वेयर इज जय, जय कहाँ है, नहीं। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। पूजा, किरण ने पूछा है डिड यू सी पूजा, नीलम से आंसर देती यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। देन यहाँ पे दिया है फादर सेज, फादर ने कुछ कहा है, पूजा बोलती है फ्रॉम द 10th of March, 10 मार्च से, 10 मार्च से,
तो यहाँ पर ब्रैकेट में कौन सा आएगा, 10 मार्च से क्या है, तो एग्ज़ाम शुरू होने वाली होगी। तो यहाँ पे है व्हेन डू योर एग्ज़ाम्स बिगिन, तुम्हारी एग्ज़ाम कब शुरू होती है, तो ये आएगा कि हाँ भाई 10 मार्च से शुरू होती है, ये आंसर आएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, व्हेन डू योर एग्ज़ाम बिगिन। नेक्स्ट, अमन सेज, अमन ने कुछ कहा है, अब हर्ष जवाब दे रहा है। हर्ष ने लिखा है ही इज़ इन द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में कौन है, तो पूछा होगा कौन कहाँ है, कोई व्यक्ति कहाँ है, ऐसा पूछा हुआ। यहाँ पे दिया हुआ वेयर इज़ जय, जय कहाँ है, तो इसका आंसर आएगा ही इज़ इन द लाइब्रेरी। यहाँ लिखेंगे जय कहाँ है, वेयर इज़ द जय। कुछ कहा है यहाँ पे, तब भाभी ने जवाब दिया है नो शी इज़ नॉट एट होम, एनी मैसेज, नहीं वो घर पे नहीं है, कोई मैसेज। तो क्या है कि फ़ोन पे बात हो रही होगी और पूछा होगा किसी ने। तो यहाँ पे दिया हुआ कैन आई स्पीक टू नीता, मैं नीता से बात कर सकता हूँ। तो अब उसने कहा कि नहीं वो नहीं है, नो शी इज़ नॉट एट होम एनी मैसेज, तो वो उसके लिए शी यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैन आई स्पीक टू नीता, क्या नीता से बात कर सकता हूँ, तो यहाँ आएगा नो शी इज़ नॉट एट होम एनी मैसेज, ये। देन राज है, राज ने कुछ पूछा है, तो अंकित ने आंसर दिया ए पोएम, पोएम वाली बात है, तो कविता पढ़ाई या पढ़ने ऐसी कोई बात होगी। तो यहाँ पे ये वाला दिया हुआ व्हाट द टीचर टीच, व्हाट डिड द टीचर टीच, टीचर ने क्या पढ़ाया, आंसर दिया है अ पोएम। अपने को यहाँ पे लिखना है व्हाट डिड द टीचर टीच। इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पे मैच द एक्सप्रेशंस विद द प्रॉपर फंक्शंस दे कॉन्वर। अब यहाँ पे ए और बी दो दिए हैं और इसमें जो एक्सप्रेशन दिए उसको आपको मैच करना है। फर्स्ट वन दिया है सुमन कैन कुक। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि इनके ये मीनिंग क्या होते हैं। तो पहला जब पॉसिबिलिटी आती है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, ये तो ये इसमें शायद वाला भाव है। फिर दूसरा है एबिलिटी, एबिलिटी यानी क्षमता, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, ऐसी बात बताते हैं, तो एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। और नेक्स्ट है नेसेसिटी, कोई कंपलसरी भाव, जैसे कोई नियम है, रूल्स के बारे में कहा कि, या कोई कहा है कि तुम बहुत बीमार हो तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, कंसल्ट करना ही पड़ेगा, और ये नियम है तो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। जब इस तरह से आए, या कोई सिचुएशन आती है कि भाई घर पे मम्मी नहीं है तो खाना मुझे ही बनाना पड़े, ऐसा है, ऐसी जब परिस्थिति बस कुछ ऐसा आता है, तब नेसेसिटी का भाव आता है कि भाई अब कोई रास्ता ही नहीं, ये करना ही पड़ेगा, या नियम ऐसा कुछ है तब। तो अब इसके लिए मैं आपको एकदम सिंपली कीवर्ड बता देती हूँ। जब भी पॉसिबिलिटी शब्द आए तो सेंटेंस किसका बनेगा, मे का बनेगा, मे आएगा अथवा तो माइट, मे माइट वाले वाक्य आपको बनाने। और मे माइट के साथ क्या आता है, क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप, जैसे गो, प्ले, स्पीक, डांस, सिंग, कॉल, राइट, रीड, ये सारी क्रियाएं फर्स्ट फॉर्म आएगा इसके साथ, क्लियर। देन है एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी यानी क्षमता, हमेशा एबिलिटी की नाम आए ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। कैन कुड एबल टू, कैन कुड एबल टू, ऐसे वाक्य बनाने और इनके साथ क्रिया का मूल रूप आता है, ठीक है। जब भी एबिलिटी आए ऐसा वाक्य है तो आप मैच कर सकते हो, एक कीवर्ड है उसके लिए। कैन यानी सकता है, कुड यानी सका, और एबल टू यानी करने में क्षमता है करने की। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब हुआ कि अनिवार्य रूप से कोई काम हमें करना पड़े, कि भाई अब कोई रास्ता ही नहीं, हमें ऐसा करना पड़े, ऐसा है, या करना पड़ा, या करना पड़ेगा, या करना पड़ता है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आएगा मस्ट, क्या आएगा, मस्ट। और मस्ट के साथ क्रिया का पहला रूप, जितना मैंने अभी तक बताया इनके साथ क्रिया का पहला रूप ही आता है, मॉडल एक्सिलरीज। तो मस्ट आएगा, मस्ट के साथ क्या आएगा, V1, क्रिया का पहला रूप। मस्ट आ सकता है कई बार, अब हम हैव टू हैज़ टू का यूज़ भी इसमें आता है। मस्ट आएगा, हैव टू, हैज़ टू, और इनके बाद भी इन दोनों के, इनके साथ भी क्रिया का मूल रूप आएगा, इधर भी क्रिया का मूल रूप आएगा, और हैज़ टू, हैव टू। अब हैव किसके साथ आता है, हैज़ किसके साथ आता है, हमें पता होना चाहिए, यानी सिंपल से हमें याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, ही शी इट के साथ हैज़ टू, हैज़ आएगा, बाकी सभी के साथ है, बाकी सभी में क्या आते हैं, आई, दे, यू, वी के साथ हैव आएगा।
हमें ये ध्यान रखना है, राइट। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन है और प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ हैव आता है, और इसमें मस्ट है। सिंपल जो मैंने बताया कीवर्ड से भी आप मैचिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कैन कुक है, सुमन कैन कुक, सुमन खाना बना सकती है, ये 99% होता है, ठीक है। तो कैन कुक तो क्या आएगा इसमें, एबिलिटी आया। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को ओबे करना ही चाहिए, तो क्या आएगा, मस्ट आया। मस्ट कब आता है, नेसेसिटी में आता है, ठीक है। माइट कब आएगा, विमल माइट कम लेट, शायद विमल लेट आए, तो ये कब, ये क्या है, संभावना है, तो पॉसिबिलिटी में आएगा। तारा कैन नॉट सिंग, तारा गा नहीं सकती, तो ये उसने अपनी क्षमता बताई, ठीक है। तो ये किस किस में आएगा, कैन में आएगा, एबिलिटी में आएगा कैन वाले सेंटेंस। आई हैव टू वर्क, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, मुझे मेरा काम होमवर्क पूरा करना पड़े, ऐसा है। हैव टू, जो हैव टू हैज़ टू वाले वाक्य नेसेसिटी में आते हैं। बहुत ही सिंपल है, कीवर्ड से भी आप कर सकते हो। आगे बताया वैसे ही है, इसमें भी कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन डैश, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे बताया वो एबिलिटी, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी। एबिलिटी जब आए तो यहाँ पे आपको जो भी करता है, ये करता है, कर्ता के साथ आपको कैन या कुड लगाना है और क्रिया का पहला रूप लगा देना है। चिल्ड्रन कैन क्लीन देयर रूम, बच्चे उनका रूम साफ कर सकते हैं, तो उनकी एबिलिटी बताइए, ठीक है। यहाँ पे वी है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जब भी पॉसिबिलिटी आए तो क्या लिखना है आपको, मे माइट लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ आगे, वी माइट गो टू द पार्टी, हम शायद पार्टी में जाएं, राइट। वी माइट या वी में। विक्रम, अब यहाँ पे दिया है नेसेसिटी, आपको पता है नेसेसिटी जब आ जाती है तो मस्ट का यूज़ करना है या हैव टू हैज़ टू का यूज़ करना है। तो विक्रम मस्ट वेयर द यूनिफॉर्म, विक्रम यूनिफॉर्म पहनना ही पड़े ऐसा है या उसे पहनना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी इतना दिया है, आपको ये कंप्लीट करना है। क्या लिख सकते हैं कि विक्रम मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, विक्रम मस्ट डू दिस वर्क, विक्रम को ये काम करना पड़े ऐसा है, ठीक है। टॉम कैन नॉट स्पीक गुजराती, टॉम गुजराती नहीं बोल सकता है, बट लेकिन क्या कर सकता है। अब यहाँ पे भी एबिलिटी बताए, एबिलिटी में वापस कैन वाला ही सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। तो वो गुजराती नहीं बोल सकता, बट ही कैन अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो इसे समझ सकता है। आप आगे से बोल सकते हो कि टॉम कैन नॉट स्पीक गुजराती, टॉम गुजराती नहीं बोल सकता, बट ही कैन स्पीक उर्दू, ही कैन स्पीक पंजाबी, ऐसे सेंटेंस भी बन सकता है। अलग तरह से भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक तरह का ही सेंटेंस बने। देन यहाँ पे दिया वाइल ड्राइविंग अ टू व्हीलर चलाते समय यू, खाली जगह, यहाँ पे फिलअप्स दिया है, क्या दिया है, नेसेसिटी से भरना। तो यहाँ पे आप भर सकते हो नेसेसिटी यानी कंपल्सरी, तो यू मस्ट हैव अ लाइसेंस, ड्राइविंग करते समय तुम्हारे पास लाइसेंस होना ही चाहिए। यू मस्ट हैव अ लाइसेंस, आप ऐसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो यू मस्ट हैव टू वेयर हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही पड़े, अथवा यू हैव टू वेयर हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही पड़े, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस मस्ट वाले कंपल्सरी वाले अपने को बोलने हैं। ये लिख सकते हो यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स ऑफ रोड। देन द स्काई इज क्लाउडी, आकाश के साथ क्लाउडी है। इट में रेन एनी टाइम, आकाश में क्लाउडी है तो किसका मतलब क्या आएगा, इट किसके लिए यूज हुआ है, रेन के लिए। इट में रेन एनी टाइम, किसी भी समय बारिश हो सकती है। तो जब पॉसिबिलिटी आए तो यहाँ पे मे माइट का यूज़ करना है। रीड द डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन, ये डेटा पढ़ना है, उसके क्वेश्चन के आंसर आपको देने। तो पहले डेटा हम देख लेते हैं। रिदम क्लब, एक क्लब है, उसका एडवर्टाइज है, कम एंड लर्न, आओ लर्न करो, तबला, हारमोनियम, ड्रम, गिटार, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सिखाते हैं वहाँ पे। और कब सिखाते हैं, एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और टाइम क्या दिया, 6 PM to 8 PM। कॉन्टैक्ट किसको करना, कॉन्टैक्ट देवेन पटेल, और उसका एड्रेस भी दिया है, 12 आदर्श कॉलोनी, स्टेडियम रोड, सूरत। अब ये पढ़ने के बाद हमें शांति से 2 बार पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, ऊपर से ही आंसर ढूंढ के हम अंदर लिखना है।
क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है विच इंस्ट्रूमेंट्स आर टॉट हियर, यहाँ कौन से इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं। तो विच इंस्ट्रूमेंट्स है ना, विच इंस्ट्रूमेंट्स है, इसकी जगह आपको जितने इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर दिए हैं एडवर्टाइज में उतने लिख देना है, तबला, हारमोनियम, ड्रम्स, गिटार। विच इंस्ट्रूमेंट्स की जगह सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख देने, बाकी क्वेश्चन में से देख के आपको लिखना आर टॉट हियर। ओके, देन द क्लासेस आर कंडक्टेड डैश अ वीक, वीक में कितने दिन कंडक्ट होती है, तो वहाँ पे डेज दिए, 3 डेज बताए हुए हैं अपने को, राइट। देख लेते हैं कौन से 3 डेज हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 डेज हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीक में सबके नाम तो नहीं लिखने, तो क्या लिखेंगे, थ्राइस अ वीक। थ्राइस का मतलब क्या हुआ, 3 बार, जैसे ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार। द क्लासेस आर कंडक्टेड थ्राइस अ वीक। हु हैज़ गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट किसने दी है, तो यहाँ पे लिखा देवेन पटेल हैज़ गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट देने वाले कौन है, देवेन पटेल। तो देवेन पटेल हैज़ गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी आवर्स आर द क्लासेस कंडक्टेड, सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट, ये यस डन, ये एडवर्टाइजमेंट किसने दिया, देवेन पटेल हैज़ गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ मेनी आवर्स आर द क्लासेस कंडक्टेड, क्लासेस कितने घंटे होती है, तो 2 घंटे, 6 to 8 टाइम है, तो 2 आवर्स हुआ। तो क्वेश्चन में से लिखें द क्लासेस, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखें द क्लासेस, ये आर इधर लिखें, द क्लासेस आर कंडक्टेड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए। यहाँ पर है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड पर आपको ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। नेम, नाम क्या है, फ्रेंड का नाम, माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। अपीयरेंस है, नेचर, एक्टिविटीज़, स्टडीज़, कैसा दिखाई देता है उसका नेचर, कैसा, एक्टिविटीज़ क्या करता है, पढ़ाई कैसी करता है, हाउ स्पेंड टाइम टुगेदर, साथ में कैसा समय बिताते हो, कितना समय बिताते हो, हाउ, वाई यू लाइक हिम, व्हाट यू लाइक अबाउट हिम, उसके बारे में क्या पसंद है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का है, देख लेते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव अलोन, अकेला कोई इंसान नहीं रह सकता है। ही वॉन्ट्स टू टॉक, लव एंड मीट हिज फेलो मैन, उसके जो फेलो मैन होते हैं, जो उसके साथ में जो दूसरे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे वो मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, बात। सो ही वॉन्ट्स टू हैव अ फ्रेंड, इसलिए उसे फ्रेंड की जरूरत होती है। फ्रेंड इज़ अ पर्सन, मित्र ऐसा व्यक्ति होता है, whom वन लव्स, लाइक्स एंड टॉक्स, व्यक्ति को उससे बातें करनी होती है, उसको अपने बारे में कहना होता है, लाइक्स बताना होता है, उसे लाइक जिसे पसंद करता है, लव करता है, वो उसका मित्र होता है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड है, हर नेम इज़ जया, उसका नाम क्या है, उसका नाम जया है। वी आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही हम फ्रेंड है। जया इज़ माई क्लासमेट, मेरी क्लासमेट है। शी इज़ सॉफ्ट स्पोकन गर्ल, वो कैसी, शी इज़ सॉफ्ट स्पोकन गर्ल है, एकदम आराम से बात करती है। शी इज़ टॉल एंड गुड लुकिंग, टॉल गुड लुकिंग। शी इज़ हार्ड वर्किंग। शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। हर हॉबीज आर ड्राइंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। everyone admires her because of her good behavior. उसके अच्छे बिहेवियर के कारण सब उसे एडमायर करते हैं। हर गोल इज़ टू बी अ डॉक्टर, उसका गोल क्या है, टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना है उसका गोल। जया एंड आई स्टडी एंड प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं। वी शेयर अवर हैप्पीनेस, सीक्रेट्स एंड सैडनेस, हम क्या शेयर करते हैं, हमारी हैप्पीनेस, सीक्रेट्स एंड सैडनेस शेयर करते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। वेन एवर आई फेस एनी प्रॉब्लम, वेन एवर यानी जब कभी भी मैं कोई प्रॉब्लम फेस करती हूँ, शी हेल्प्स मी, वो मुझे हेल्प करती है, इसमें टू गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाने में, किससे, द प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में, किस तरह से, बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करके। आई फील लकी दैट शी इज़ माई फ्रेंड, मैं बहुत लकी हूँ, ऐसा फील करती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि वो मेरी क्या है, बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड।